Okay. So coming to the classroom. Now, if the assignment is there, based on that assignment, whatever instruction I have to give, I will give the instruction here. And then if I want to attach anything from the drive or YouTube video, or I have to create something. See, create has options also here. You can directly create something here. If I have to create a sheet, मैंने यहाँ पे sheet कर ली attach. Okay. Now this sheet I am opening here. And I am giving some assignments here. Let me give some assignment. मैं copy paste कर दे रही हूँ so that it is easy. Okay, this is the assignment. I have asked students to write the formulas and function based on what they have learned in the class. Now I closed it. I am giving a name here, demo. Okay, see, it is in the drive folder also. Now I'm coming to the classroom. Now this has been done. Now I want this sheet to go to my student. Like you have your own copy of it. आप इसी कॉपी पे वर्क करें. एक तो है कि जो मैंने फाइल बनाई उसी पे वो एडिट कर ले. जो फाइल है हमारी उसी पे, लाइक एक ही वर्क पे, जो कोलैबोरेटिव वर्क होता है. तो द स्टूडेंट विल गेट अ कॉपी और सारे बच्चों को उसी पे एडिट करना हो. तो एवरीबडी हैज दैट एडिटिंग राइट. वन इज they can view the file, they can't do anything, they can make a copy of it and they can do it there and then attach it. But one is you make a copy for each student and you assign. So जब मैं assign करूंगी तो this copy, whatever I have created, this copy assignment will go, each copy will go to the student. आपको कुछ भी नहीं करना है, only they have to turn in. उनके पास वो कॉपी चली जाएगी and they have to turn in. I am just giving this code to in the classroom. आप ज्वाइन करके एक बार देख लो कैसा लगता है. वैसे I have given today as a assignment also. मैं इसका कोड दे रही हूँ. Wait. समझाती हूँ उसके बाद मैं कोड दे रही हूँ. So points, if you want it to be ungraded, you can check it ungraded. If you want continuous, you want 5 classes to be posted with the same assignments. You all are in demo. Google Classroom batch 2. I am posting the same thing in the Google Classroom. See, those who are there and check your Google Classroom that you get a separate sheet for yourself. Topic, you can assign any of the topic, whichever you want. You can check the topic. These topics were not here in the classroom, but these topics were there in the batch 2 classroom. So these topics are visible here. ये भी नया क्लासरूम है, मैंने इसमें कोई टॉपिक्स नहीं बनाई थी. ये विजिबल इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरी क्लास को असाइन किया है जिसमें ये टॉपिक्स हैं. तो ये टॉपिक्स उस क्लासरूम के किस टॉपिक के अंदर जाएंगे, I have to select. So I am creating another topic जिससे कि ट्रायल, जहां पे आपको दिख सके. See, I am posting this, you can check it there. You get your own sheet. Somebody please check and tell me you got that. It is there. See, I am just looking at the. See, ट्रायल नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बन गया. ये जो आपकी क्लासरूम है उसी में, और ये कैनवा यहाँ पे आ गया. ये डेमो शीट यहाँ पे है. Yes, ma'am. Got it. And it is I got it. all the students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I have not created anything. मैंने नए क्लास में कुछ भी नहीं किया और मैंने दूसरे क्लास से लिया. और यहाँ पे भी देखिए ट्रायल नाम का एक टॉपिक बन गया, क्रिएट हो गया. यहाँ पे भी हो गया और दूसरे वाले क्लासरूम में भी आ गया. एंड इट इज असाइन टू अदर स्टूडेंट ऑल्सो. मैम विद नेम आया है. हाँ. नाउ आफ्टर दिस, wait.
Now I am coming in editing. You can edit your assignment, you can delete your assignment, you can copy the link of the assignment and you can post it also. Okay, जब edit पे हम जाते हैं, so if you want to change something, you want to add on something, you can do it. You want to create a rubric, you can create it. That rubric you will learn in level 2, not in level 1. And you can save whatever changes is there, you can save. Here, from here, you can schedule it also and save as a draft also. These options also get. Once I have published this, मैंने save करके post कर दिया था, इसलिए I am not getting that option. I am showing you how you will get that option again. ये assignment create किया, you can see here drop down जो है, वहां पे assign, schedule, save draft और discard draft दिख रहा है. Save draft में आप सारी setting करके रख दीजिए. And then when your class ends, क्लास खत्म होती है, बस तुरंत आपने पोस्ट कर दिया. जैसे मैंने अपने क्लासरूम में पहले से सारा कुछ ड्राफ्ट करके रखा हुआ है. कैन यू सी इन माय क्लासरूम? इट इज ऑल ड्राफ्टेड हियर. As soon as my class gets over, I just post it. मैंने पोस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है. सारे सेक्शन सब कुछ बना हुआ है. And I will post everything. So this can be done. Now I'm moving to the second one, that is material. When you are going for material, so you will not get an option for turn in. आपको सिर्फ असाइनमेंट देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, टॉपिक देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, कोई भी मटेरियल या लिंक या वीडियो कुछ भी है अटैच करना है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ टॉपिक. इफ यू वांट अगेन to allot to some other class, you can give it from here and you can allot, same topic will appear. If you want to give only few students, जैसे remedial classes हो रही हैं या किसी बच्चे को और extra चीजें चाहिए, तो आप वहां पे मटेरियल की तरह से दे करके, it's a record also, it has in your class and you can assign to specific student also कि हमने उनको दे दिया है, and you can post it and save draft, whatever you have to do, schedule, you can do it from here. In this you will not get any turn in. बच्चों के साइड से आपके पास कुछ भी नहीं आएगा. This is material. तो जनरली क्या होता है, जब हमारे गूगल क्लासरूम में जब हमारा ये चेक होता है कि हमने कितने असाइनमेंट पोस्ट किए, उसमें बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, बट टर्न इन नहीं होता, उसमें आपका टर्न इन नहीं मांगा जाता है, बट आपने एज अ असाइनमेंट पोस्ट कर दिया होता है, देन इट इज काउंटेड. जैसे हमारा जो एक मिनट वो है डेटा लेक, हाँ, वर्टल डेटा, वर्टल पे क्या होता है, आप सबके बहुत सारे नाम आते हैं कि इतने असाइनमेंट्स इन्होंने दिए एंड इतने चेक नहीं किए. तो उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि यू जस्ट गिव एज अ असाइनमेंट, यू डोंट वांट एनी टर्न इन, बट यू हैव गिवन इट, so it is showing as an assignment and you need to check there. Some remark you have to give there and return it. That is why it shows like that. Okay. Now after that, reuse post. If I'm coming to reuse post, I am using, okay. So हमें कोई ऐसा post जो मैंने किसी और क्लास में किया है and I have to use the same post here also. So I can select the class, whichever class it is. उस क्लास के अंदर कौन सा पोस्ट मैंने किया था, मुझे यहाँ वो वाला पोस्ट यहाँ पे भी करना है. I will select that post and reuse it. So this is going to be posted here. Again, I don't have to write all the instruction, the attachments and all. See, everything is appeared here. And you can, this also, you can schedule it, you can save as a draft, you can post it. Can you see? It is all there. मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा. Everything is there and you post it. Any doubt till here? No, ma'am. Okay. So after this topic, you all know how to create the topic. You are familiar with. Now coming to people. People, you add a co-teacher here. When you click on this plus sign, you add a co-teacher here if you want to add. And when you finish with the class, जब आप एक बार finish कर लेते हो class, तो आप नया section बनाने की बजाय
you can transfer your control to other teacher. उस टीचर को एज अ क्लास में जोड़ करके क्लास में, let me check if I have, okay, I am using some other class. This is not my class. Okay, so this is my class. In the people, you can see Munmun ma'am is there. If I want to make change the class owner, मैं यहाँ से class ownership change कर सकती हूँ. Now, just now, right now, I am the owner of this class, but I want, when my student goes in other class, I want that class teacher, the new class teacher, to be owner of the class, so that she should get each and everything from my class. Means उनका जितना भी है invite नहीं भेजना पड़ेगा फिर से बच्चों को. The students are same, so we can transfer the ownership to other teacher. Okay? Yes, ma'am. Then student invite, everybody knows how to invite the student. Either you send a code, this is the invite link, either you send a link, either you type their email IDs and send an invite, so they will join. See, as soon as I click the name, the invite is visible. I can make them like join like that also, or you can ask them to join through code. So joining is done by code, inviting through link, or typing the email IDs, and you can invite. Okay. Then coming to grade section. Now for grade section, again I have to move to the class where I have already given the marks or the assignment. See, this is the grade section. Now, this is the one place where you will find all your assignments and the grades. सारे grades और assignment, यहाँ से you can easily make it out किस बच्चे का कितना assignment missing है, किसने अभी तक ये मुझे नहीं दिया है, टर्न इन नहीं किया है, तो वो आपको यहाँ से easily पूरे साल का आपको दिख जाएगा. And you can make it out. Any doubt? No, ma'am. और एक साथ यहाँ से आप रिटर्न भी कर सकते हैं. जैसे आपने ग्रेडिंग कर दिया, यू हैव ग्रेडेड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और ग्रेडिंग करने के बाद जो है आपने यही से रिटर्न कर दिया उसको, सो दे विल रिसीव द मार्क्स. ओके, देन कम सेटिंग. अभी जैसे अगर हम 6B में आते हैं एंड आई वॉन्ट द, wait, let me come to the class work. Okay. Ab like I have the assignments here. This is the assignment. I have given the grades also. I have given everything. Now I want a CSV file. Whatever marks I have given, I want the worksheet of that, sheet of that assessments, जहाँ पे सारे marks मेरे आ जाएं. तो एक है डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV. आपका सारा उनके टाइमिंग कब उन्होंने दिया, विथ ईमेल आईडी यू विल गेट ऑल द ग्रेड्स. जितने भी असाइनमेंट्स है उनका सबका आ जाएगा. अगर स्पेसिफिकली आप सिर्फ इस असाइनमेंट की ग्रेडिंग चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू कॉपी ऑल द ग्रेड्स टू गूगल शीट, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर. स्पेसिफिकली इसका सिर्फ ईमेल आईडी, उनके मार्क्स, मतलब पूरा डिटेल चाहिए, देन गो फॉर दिस फॉर ऑल द असाइनमेंट्स. स्पेसिफिकली सिंगल असाइनमेंट के लिए यू कैन गो फॉर दिस. इफ यू वांट ओनली द ग्रेड्स टू बी पेस्टेड ऑन वन गूगल शीट, यू कैन गो फॉर दिस. ओके. Then see, you have your classes, you have calendar to review, how many are missing, how many we have done, reviewed कितने हैं, you can check it from there. To review में आप जाके review कर सकते हैं. मुझे due dates इतने हैं, अभी remaining work in progress 41 ही मैंने अभी तक check किए हैं.
and I have to do more. You can check your own progress also when you go and review yourself. So I hope classroom is clear to everyone. That was all for classroom. Okay. Let me come to the presentation. So we have done everything, adding co-teachers and all, setting up streams, classwork, grades. Now coming to Google Docs. Let me close all the classrooms so that it is easy for me. Okay. Now Google Docs. Now in Google Docs, what we have to learn is creating a Google document, sharing a Google document, how to collaborate using Google Docs, providing feedback with comments and suggested edits in docs, direct comments to specific users, add link to comments, access version history and revert to earlier version of Google Docs, review group contribution with comments and version histories. So coming to Google Doc, I am coming to a new tab. One is you type here docs.google.com. If you want a new, so you can type Google doc.new. So a new document will be open. Other thing is you can go to your drive, click on the plus sign, and from here you can find Google Doc. You want a template, you want a blank document, you can take it from here. The third one is you can go to this waffles, and from here you can select the doc and you can open it. Okay, now coming to the doc here. Now sharing option, you all know how to share it. You can share it. For sharing, first you have to give a name to your document. First you have to give a name to your document. Then you can share it with whatever or whoever you want. So here when you click on the drop down, you get three things. Like we are using a domain of Delhi Public School. So it is visible here, Delhi Public School. If it is Nasik teacher or Nagpur teacher, it will be mentioned here DPS, Nagpur or Nasik, whatever it is. Anyone with the link can view. So this is the link you can give to or paste or share this. If you want that person to whom you are sharing only to view, कुछ नहीं करना है उसको, कोई राय नहीं देनी है, only as a viewer. So you can send as a viewer. If you want that person to be as a commentator, जो भी लिखा हुआ है वो कमेंट की तरह हो कि नहीं हो, कमेंटेटर की तरह से. Then if you want somebody to collaborate and work with you, you can click on editor. So you can go with it. Another setting is here. You can click on this setting. If you are sharing someone and you don't want that person to edit, so unclick that. So that document which you are sharing, भूल गए, गलती से शेयर कर दिया है, वहां से सेटिंग हटा दो. व्यूअर और कमेंटर की सेटिंग है, कुछ भी वो हटा सकते हैं यहाँ से भी. You can unlock this. Okay. So this is done from there also. Now coming to the doc. Now when we are talking about inserting, you can insert the image. Earlier the image option was not there. हम Google Doc में कोई भी ड्राइंग या इमेजेस इंसर्ट करने के लिए
वो इमेज ऑप्शन नहीं था. वी वर इंसर्टिंग इट थ्रू ड्रॉइंग. हम कोई चीज भी यहाँ पे ड्रॉ करके करते थे, तो ड्रॉइंग के थ्रू ड्रॉ करते थे. नाउ वी हैव दैट इमेज ऑप्शन. वी कैन इंसर्ट द इमेज डायरेक्टली from computer, from web, from drive, photos or URL or cameras. Other one is you can, the other way to insert image, you have an option here to insert the image. And another one is from here, this is the explore button. You can see at the bottom. When you click on explore button and you search for something, if I'm searching for, you can say Kedarnath. See, केदारनाथ मैंने किया यहाँ पे. I got that Kedarnath information, everything. If I want to search the image from here, I can check the images also from here and I can insert the image. See, the image is inserted. If I want something to be written here, I can copy down. The text is coming from Wikipedia. I can copy down the text and I can paste it here also about Kedarnath. If I want something from the drive also, I can take it from here. So from web, the document also you can see and you can connect it. You can also insert the image and you can also insert from the drive also. Okay, then what was there? Let me check. Collaborate. I told you how to collaborate. Now feedbacks. If you want to give comment and suggest something, see here it is getting the editing or suggesting mode. जब हम share कर रहे हैं किसी से भी, you want somebody to suggest. So you are as a suggesting, you are sending something as a suggesting mode. ये suggesting mode हो गया. You cannot write anything when you send as a suggesting mode. See, it will not take. ये suggested में highlight होकर के आ रहा है and you are getting, let me show you. See, you will get the suggesting mode here. You can type anything, you can mail it at the rate. When you type at the rate, to whom you are sending as a suggestion, you can select it from here and you can send. Can you see? Suggesting mode में चला गया and you are sending it the reply to that person. See, it has gone to my ID only. कि ये ऐड करना है मुझे, ये वाले कमेंट जो मैंने डाला है, प्लीज ऐड, दिस इज नॉट माय डॉक्यूमेंट एंड आई एम सजेस्टिंग समवन टू ऐड these sentence to this document. So this has been gone. When that person will see and then he will accept the suggestion, he will click on this and he will accept the suggestion and they can add it. If you want to send as a viewer mode, you can send it the text as a viewer mode. See, it is a viewer mode. You can see the eye here. This is a viewing mode. Nobody can do anything. The features are not available here when you send it, so that he will not be able to do anything. As I am the owner, I can see. So when I'm sharing it, let me share the link here in the chat box so that you can see how it looks.
सोनल मैम आप कुछ कर पा रही हैं? No, You are- ma'am. No, ma'am. संगीता मैम आप कुछ कर पा रही हैं? No, ma'am. So you can share as a viewer. Yes, ma'am. ठीक है? Now I have changed it as a editing. ठीक? Okay. Now this is clear sharing and collaboration. Yes, ma'am. Now add link to comments. अब अगर हमने कोई comment दिया, now if I am adding any comment here, insert comment. See. Now I am sending any comment. यहाँ पे मैंने comment दिया और यहाँ पे comment के साथ कोई लिंक भी हम लगा सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर मुझे लिंक लगाना है, I can share the link here as a comment also. मैंने अपने इस स्लाइड का लिंक यहाँ से लिया, कॉपी, एज अ कमेंट मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया. Now you can go to that link and you can open. As a comment, when you are reviewing this, you can go and check this and you can see that also. Are you able to? मेरे वाले पर ये लिंक नहीं दिख रहा है मैम. No, ma'am. Acha, 1 minute. Let me add and share this with Sangeeta ma'am. संगीता मैम देख, अब आप देखिए, आपको दिख रहा है? Not yet. I have shared this comment with you. Refresh करो. I have shared the link again. Yes, ma'am. You can see the comment and the link. Yes, yes. So this is how you can send. अगर एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट है, उसका लिंक वहां पर भेज करके @ स्पेसिफिकली आपको किसी और को भेजना है, किसी पर्सन को, you can send it from here. So that सभी person तो नहीं will, कर पाएंगे ना मैम, जिसको सब लोग रहेगा नहीं, स्पेसिफिकली जिसके लिए आपने भेजा है उसको आप ओ, भेज सकते हो. ओके ओके. ठीक है? आप और किसी को दिख रहा है ये कमेंट? मैम मुझे नहीं दिख रहा है. क्योंकि नहीं दिखेगा, मैम नहीं दिखेगा दिख रहा है. because- मैंने सिर्फ संगीता मैम को दिया था. ओके. अब मैं अगर सोनल मैम को भी ये कमेंट देती हूँ, मैंने इसमें सोनल मैम को भी भेज दिया ये लिंक. यू कैन ऑल्सो सी एन कमेंट. जैसे सोनल मैम रिफ्रेश करके एक बार देखिए. कैन यू सी नाउ? मैम एक बार लिंक फिर से दीजिए. ओके. Now check Sonal ma'am. Yes ma'am, I'm getting you are suggesting. Yeah. है ना? Yes ma'am. सो आप जिसको भी स्पेसिफिकली शेयर सबसे कर दीजिए एज अ व्यूअर, बट सजेशन आपको जिसका चाहिए, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. नाउ अभी अपडेशन हो रहा है. देयर इज वन मोर फीचर इज एडेड इन दिस, दैट इज अप्रूवल. जैसे हम कोई मीटिंग के लिए एजेंडाज बनाते हैं, ठीक है, और हमने अपने कोऑर्डिनेटर को फॉर अप्रूवल भेजा, तो यहाँ पे फाइल में एक और ऑप्शन आएगा अप्रूवल का. वो अप्रूवल पे जैसे हमने भेजा और अप्रूवल के लिए अप्रूवल पे क्लिक किया और हमने अपने कोऑर्डिनेटर को या प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को, किसी को भी हमने @ करके उनको भेज दिया. दैट पर्सन गेट्स द एजेंडा एंड व्हेन शी अप्रूव्स इट,
वो क्लिक उस पे, जैसे ये टिक मार्क है ना, उस टिक मार्क में वो भी अप्रूवल के साथ भी आएगा, उस पे टिक कर देंगे. Then nobody can do any changes on that agenda. Once it is approved, no changes can be done on that. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Now here you can insert table also. If you want to insert a table, whichever row, whichever column, or how many columns or row you want, you can create it. See, the column row is created and you can write it here very easily. ठीक है? इसमें if you want to insert a row above, row below, insert a column left, you can do it from here. Row you can insert, table हो गया inserting में. Then if you want to insert any drawing here, you can click on drawing. कोई भी शेप्स है, आपको शेप्स लेना है, टेक्स्ट लेना है, इंफोग्राफिक बनाना है, तो हमने यहाँ पे शेप ले लिया. मान लीजिए एक स्क्वायर लिया, ठीक है. उसका कलर मुझे अगर चाहिए रेड, तो मैंने रेड ले लिया. मैंने एरोज लगा दिया. मैम प्लीज गो लिटिल बैक. क्या हो गया? मैम ड्राइंग का कहाँ से आया था, एक बार फिर से बता दीजिए. इंसर्ट ड्राइंग. ओके ओके ओके. इंसर्ट ड्राइंग. इसमें एरोज ले लिया, इसमें आपने कर्व ले लिया. स्क्रिबलिंग, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, यू कैन स्क्रिबल ऑल्सो. You take it like that, and then whatever you have done, you want to insert a picture also, you want to write a text also, here you can add a text box also. ठीक है? कोई पिक्चर अगर ऐड करनी है आपको, if I want a greeting card to be made here, I can search a border here. मेरे पास कई सारे बॉर्डर्स आ गए, हमने बॉर्डर ले लिया, हमने इंसर्ट कर दिया. See, the border is there. अब इसके अंदर मुझे ये शेप इस बॉर्डर के अंदर डालना है. I will cut this shape and paste. इसके अंदर हम शेप टेक्स्ट बॉक्स लेके जाएंगे. And I can write anything inside that. Smita is in writing. Save and close. This all drawing will appear on your document. See, जो भी चीज मैंने वहां पे किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई. Insert, drawing, new drawing. And this drawing is saved in your drive also. You can check in your drive also. It is all saved here. जो भी आप बना रहे हैं, वो सब यहाँ पे सेव हो जाता है ड्राइंग में. See, it is saved here. ड्राइंग भी आपका सेव हो गया है. जब आप ड्राइंग में जाओगे, तो आपको ड्राइंग में ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी. ये ऑलरेडी सेव रहती है. फाइल ओपन मैंने जब किया, तो देखिए ये सेव है मेरे ड्राइव में. रिसेंट की ड्राइंग में अच्छा, मैंने क्लोज नहीं किया अभी. ये ड्राइंग यहाँ पे सेव हो जाएगी. आपको रिसेंट में जो भी आपने बनाया है, वो आपको दिखेगी. आई थिंक इट इज इन सम फोल्डर. वो है. आई हैव टू चेक फ्रॉम हियर. इस ड्राइंग से मुझे दिख जाएगा. तो दैट ड्राइंग विल अपीयर देयर. सो इट इज क्लियर. मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए. मैंने यहाँ से बॉर्डर यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या अपलोड फ्रॉम वेब किया. इमेज, सर्च फ्रॉम वेब, बॉर्डर,
जैसे हम कुछ डिजाइन करते हैं और हमें बॉर्डर्स चाहिए होते हैं, यू कैन टेक द बॉर्डर फ्रॉम हियर, डबल क्लिक इट और इंसर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट द बॉर्डर। अब ये बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट में बॉर्डर ऑप्शन नहीं है, व्हेन यू सेंड समथिंग so you can use this border there, insert a text box, if you want to send some message here you can send। छोटा छोटा कभी कभी हम बच्चों के लिए बनाते हैं ना नोट, तो we can insert a note like this also with the border, और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। स्मिता मैम इंसर्ट में जाना है। हाँ, ड्राइंग के इंसर्ट में गए जी, ड्राइंग के इंसर्ट में, अच्छा ठीक है। हाँ, ड्राइंग के इंसर्ट में भी मिल जाएगा और डॉक के इंसर्ट में भी ड्राइंग ऑप्शन है। ड्राइंग के इंसर्ट में भी ऑप्शन है, चेक करो। बच्चों के लिए कभी कभी नोट्स बनाते हैं ना हम, कोई मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, सो वी कैन टेक दिस टाइप ऑफ beautiful borders and inserting a text box in that we can write a message। welcome cards बनाते हैं with a beautiful border, see it is inserted, save and close, it is inserted in the doc। Can you see? It is there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Now, I think all is clear. Spelling, grammar, explore, voice typing. I think everybody knows it. Yes, 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 ma'am. ठीक है। अच्छा, एक और चीज मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यहाँ पे स्टार, मूव और डॉक्यूमेंट स्टेटस दिख रहा है। स्टार इज व्हेन यू मेक इट अ स्टार। जैसे ही मैंने स्टार किया तो ये वाली जो डेमो फाइल है, इट विल अपीयर इन माय स्टार्ड फोल्डर। यू कैन सी हियर, ये देखिए डेमो दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वो स्टार्ट फोल्डर में आ गया इधर, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ से मूव करना है, आई वांट दिस फोल्डर टू बी इन एनी अदर ड्राइव, तो यहीं से हम मूव कर देते हैं उसको, मेक कॉपी करके या कहीं और जाके सेव करने की जरूरत नहीं है। आई वांट दिस फोल्डर टू बी इन 2020-23। इसमें जाकर के एक हमने ऐसे ही एक फोल्डर बना दिया डेमो, और उस फोल्डर के अंदर मुझे ये फाइल चाहिए, मैंने यहाँ से मूव कर दिया इस फाइल को। नाउ सी आई एम गोइंग इन टू माई ड्राइव 2022-23 और डेमो नाम का एक फोल्डर है। देयर आर 2 डेमो फोल्डर्स, सो लेट मी चेक विच डेमो फोल्डर के अंदर है ये। तो दिस इज नॉट देयर, वेट, इसमें होगा। See, this file is here. Directly I have moved that file from its position to in my folder. ठीक है, I think I have covered all। हाँ मैम, अगर हमें सेम फाइल 2 प्लेसेस पे चाहिए, सेम फाइल, तो डू वी हैव टू मेक अ कॉपी और हम सेम फाइल? ये है आपकी फाइल, राइट क्लिक कीजिए, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव दिख रहा है। हाँ, ये फाइल यहाँ पे भी है, मैंने शॉर्टकट इसका लिया और मुझे कहाँ रखना है इसको, मैंने यहाँ से उसको उस पोजीशन पे डाल दिया, मैंने यहाँ पे 2021 के अंदर डाल दिया। नाउ दिस फाइल विल बी हियर एज अ शॉर्टकट। मैं दिखा रही हूँ, एक फोल्डर बना के दिखा रही हूँ, बैच 2 2021 के अंदर बैच 2 नाम का फोल्डर है, वहां पे मैंने शॉर्टकट पेस्ट कर दिया। लेट मी गो टू 2021,
बैच 2 नाम का ये फोल्डर मैंने बनाया। इसके अंदर देखिए एज अ शॉर्टकट वो फाइल यहाँ पे भी आ गई। ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, Yes, ma'am. दिस इज द शॉर्टकट। ओरिजिनल प्लेस इज देयर, वो 2023 के डेमो के अंदर है, Okay. बट इसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी हम जो काम This करेंगे, can be done with the sheets also. एनीथिंग Okay. मैम जो भी चेंजेस हम इसके ओरिजिनल में करेंगे वो इधर भी हो रहा होगा। उधर भी हो रहा होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है, आप ये देखिए, ये कंप्यूटर फोल्डर है, ये कंप्यूटर फोल्डर शेयर्ड फोल्डर है। जैसे मेरी कोऑर्डिनेटर ने ये फोल्डर को शेयर किया हुआ है, ये मेरा शॉर्टकट है कि मुझे इजीली आई कैन एक्सेस दिस। इसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का मुझे लेसन प्लान डालना होता है। तो ओरिजिनल फोल्डर इज शेयर्ड विथ मी, इट इज इन द शेयर्ड फोल्डर। यहाँ पे मिलेगा कहीं डेमो, ठीक है। कंप्यूटर का फोल्डर जो शेयर्ड है वो यहाँ शेयर्ड वाले में होगा, बट मैंने अपने ड्राइव में उसका एक शॉर्टकट बना के उस फोल्डर का भी रख लिया है कि मुझे कहीं शेयर्ड में खोजने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे यहाँ से वहां काम कर दिए, मेरा काम हो गया। या एविडेंस का फोल्डर है, ये शॉर्टकट है, देखिए ओरिजिनल फोल्डर नहीं है। ओरिजिनल फोल्डर किसी और के पास है, शेयर्ड फोल्डर है ये फोल्डर एविडेंस, देखिए ये एविडेंस फोल्डर है, दिस इज अ शेयर्ड फोल्डर। ये देखिए इट इज शेयर्ड बाय मेनी पीपल, कैन यू सी? यस मैम। इट इज अ शेयर्ड फोल्डर, बट इसका शॉर्टकट मैंने बना करके ये शेयर्ड वाले में ही दिख रहा है मुझे। ये देखिए शेयर्ड विथ मी एविडेंसेस, ये फोल्डर ओरिजिनली शेयर्ड है, बट माय ड्राइव में मेरे सामने शेयर्ड फोल्डर में ना दिख करके मुझे सामने सामने यहाँ दिख रहा है। मैं इस पे काम कर सकती हूँ तुरंत यहाँ से, ठीक है। Thank you, ma'am. थैंक यू। नाउ वर्जन हिस्ट्री। कभी कभी होता है ना, मेरे डॉक्यूमेंट में किसी ने चेंजेस कर दिया, किसने किया मुझे नहीं मालूम है। यू कैन गो एंड चेक विद द वर्जन हिस्ट्रीज। सी वर्जन हिस्ट्री है, यहाँ पे जितने लोगों ने एक्सेस किया होगा उसका इस पे पता चल जाएगा। जैसे मैंने 16 जुलाई को 534 पे इसमें चेंजेस किए, ये वो चेंजेस हैं। अब इससे पहले 514 में इसकी कंडीशन क्या थी, वो ये थी, ये प्लेन डॉक्यूमेंट था, दिख रहा है। अगर मुझे प्लेन डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पुरानी चीजें नहीं चाहिए, मैं रिस्टोर कर दूंगी, तो जितने भी चेंजेस हुए होंगे वो सारे डिलीट हो चुके होंगे। मुझे वापस उस वर्जन में आना है तो मैं इस पे ही रहूंगी एंड आई विल गो बैक। ऐसा हर एक चीज के साथ होता है, चाहे वो गूगल शीट हो, चाहे वो स्लाइड हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेट मी शो यू द शीट ऑल्सो। लेट मी मूव टू माई ड्राइव। गूगल सर्टिफिकेशन, ओके, दिस इज द अटेंडेंस शीट, ठीक है, ये शीट है। अब इसका मुझे पुराना वर्जन देखना है। सी लास्ट एडिट मेड बाय के सिंह, दिख रहा है 10 जून को। नाउ यू कैन सी इस अटेंडेंस शीट में किसने किसने चेंजेस किए हैं वो दिख रहा है। मैंने कब किया, ये हर एक टाइम पे जैसे ही मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगी मुझे पुराने वर्जन में एकदम ब्लैंक मिल रहा है। फिर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो फर्स्ट डे का दिख रहा है मुझे अटेंडेंस। फिर ये सेकेंड डे का अटेंडेंस भी मुझे दिखेगा इसके साथ, सेकेंड डे का टाइम कॉल, इसके बाद चेंजेस किया वो आ गया, ये दिख रहा है। फिर 18 को थर्ड डे जब मैंने क्लास लिया उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड मैंने इसमें डाला। अब मुझे 3 दिन का रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे मैंने चेंजेस किया था, मुझे यही चाहिए, मैंने रिकॉर्ड रिस्टोर कर दिया ये वर्जन। तो आगे के जो चेंजेस थे दैट विल डिसअपियर। ये देखिए लास्ट में जो चेंजेस हुआ है वो के सिंह सर के साथ किया है, के सिंह सर ने, वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या चेंजेस किया है। मोर एक्शंस, नेम दिस वर्जन, मेक अ कॉपी, इसका हम कॉपी भी बना सकते हैं, ओके।
अब अगर किसी की हिस्ट्री पता करनी है, अगर इसमें कोई चेंजेस किसी ने कर दिया है, तो जैसे ये सेल है, यहाँ की राइट क्लिक किया, शो एडिट हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री में जितने भी चेंजेस जब जब हुए होंगे, दैट विल बी शोन हियर। कितने बजे किसने क्या नाम इसमें चेंज किया या कोई डेटा को चेंज किया, यू कैन चेक द हिस्ट्री ऑल्सो फ्रॉम हियर। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो कमेंट्स हो गया, लिंक कमेंट हो गया, वर्जन हिस्ट्री हो गया, ग्रुप कंट्रीब्यूशन विद कमेंट, वर्जन हिस्ट्री मैंने चेक करा दिया। सो डॉक इज ऑल्सो कंप्लीट। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? किसी को कुछ भी पूछना है, कहीं डाउट हो रहा हो? यस परिजात मैम। Ma'am, I just want to ask how to insert ये text box in the Google Doc, because sometimes we used to give help box to the student to fill in the blanks. So how to insert text box? How to insert text box? I am opening a doc. ठीक है, इंसर्ट जो मैंने कहा आपसे ड्राइंग पे जाकर के टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए था। ठीक है, और भी बहुत सारे एड ऑन्स हैं, लेट मी टेल यू। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस क्रिएट किया, लाइक लेट मी टेक, यहाँ पे सेंटेंस था केदारनाथ वाला। ठीक है, अब केदारनाथ के कुछ सेंटेंसेस को, जैसे आप एज ए इंग्लिश टीचर, आप या ईवीएस टीचर, मैंने यहाँ से ये कट कर दिया टाउन। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ टाउन लिख दिया, ये स्पेस बना दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से उत्तराखंड यहाँ से कट किया, यहाँ से मैंने किलोमीटर्स कट किया। ठीक है, अब नाउ आई हैव अ ऑप्शन हियर। ये देखिए, ये इंसर्ट किया, इंसर्ट, कैन यू सी हियर अ ड्रॉप डाउन? Yes, ma'am. जब हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे किया न्यू ड्रॉप डाउन। Drop down. ठीक है, जो आप फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह से कह रही हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाउन। ठीक है, Okay. ये हटा दिया। मैंने यहाँ पे कर दिया उत्तराखंड। मैंने तीसरे ऑप्शन में रख दिया किलोमीटर। कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को चौथे ऑप्शन में लिख दिया हमने हिल स्टेशन, कुछ भी इस तरह से। It's a nice one. Thank Okay. you, ma'am. सेव कर दिया। See now here the student is getting a drop down. Whichever the correct word is there, he can use that word. जैसे ही मैंने यहाँ उत्तराखंड किया, वो उत्तराखंड आ जाएगा। बच्चों को ऐसे आप लाइव वर्कशीट दे सकते हैं। बना दिया, यहाँ पे फिर से इंसर्ट किया, मैंने ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे फिर से डाल दिया। ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ड्रॉप डाउन और कॉन्फ़िगर्ड वन जो हमने अभी बनाया था। यू कैन गिव अ नेम ऑल्सो टू दिस। यहाँ पे एडिट करके आप इसको नेम भी दे सकते हैं, और ब्लैंक्स। ठीक है, Thank you, ma'am. और यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन इंसर्ट कर दिया। आई वांट ब्लैंक वाला सेम। सो यू कैन गिव लाइक दिस इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द टेक्स्ट बॉक्स। ब्लैंक्स में से दे कैन सेलेक्ट, यू कैन चेंज द स्पेलिंग्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स दे दीजिए, उसमें से करेक्ट स्पेलिंग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने पूरा टेक्स्ट डाल दिया, इस तरह से आप उनको पजल्ड हो जाएंगे बच्चे, कौन सा वर्ड स्पेसिफिक आएगा। लाइक वी गिव द की नोट्स, की वर्ड्स हम देते हैं, तो वहां से वो सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी अच्छा है, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है, Yes, ma'am. Thank you, It's ma'am. really good. It's really good, It's Smita. really good. Really good. Nice one. Yes, ma'am.
इसमें का मैम बच्चे क्लिक करेंगे वहां पर आंसर आ जाएगा ना, जैसे हाँ ये देखिए, lines की तरह। मैं आपके संग Kind of शेयर की हूँ ना, MCQs है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए बच्चों मैंने के। आपके संग शेयर किया है ना, मैं एज ए एडिटर आपके संग शेयर कर रही हूँ, ठीक है, इस लिंक को जस्ट चेक, आपको भी वो चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टेक दिस शीट, आपके पास ड्रॉप डाउन है, आप फिल कर सकते हो कि नहीं। अब जैसे ये हमने बना दिया शीट, ठीक है, अब इस शीट को मेक अ कॉपी करके आप बच्चों को भेज सकते हैं, ईच कॉपी फॉर द स्टूडेंट, मेक अ ईच कॉपी, तो बच्चा अपनी अपनी कॉपी करके सबमिट कर देगा, इस तरह से बना के वर्कशीट आपने दे दिया, ठीक है। यस मैम, ये बहुत अच्छा है। यस मैम। वेरी इंटरेस्टिंग मैम, बहुत अच्छा है ये वाला, बहुत अच्छा है। तो ये वाला काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है, यहीं से आपको, आप आजकल देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में @ लिखा हुआ आता है, इजंट इट, @ यहीं से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को मेल करना है तो आप यहीं से मेल भी कर सकते हैं, सिर्फ @ लिखा और हम आपको मेल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से है ना, मीटिंग नोट्स, ईमेल ड्राफ्ट, जो भी चीजें हैं हम यहाँ से आपको ईमेल कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया सुनीपा सान्याल, तो ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है, एक मिनट क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, हाँ अब क्लियर है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ @ लिखा, @ लिखते ही मेरे सारी चीजों से, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजों से ये लिंक्ड हो गया। कैन यू सी देयर। यस मैम। अगर मुझे ये आपको मेल करना है, आई विल राइट योर ईमेल ID, यहाँ पे मैंने लिखा वैभव, @ वैभव रानी, ठीक है। तो ये वैभव रानी के पास हम लिंक कर देंगे। ये देखिए ये मेल किया, ओपन डिटेल, सेंड अ मेल, यहीं से ये डॉक्यूमेंट मेल हो जाएगा। दिख रहा है, यहां से आपने मेल कर दिया। ओके, अगर आपको यहाँ से अपनी कोई चीज को लिंक करना है, मैंने यहाँ पे एक मीटिंग नोट या चेकलिस्ट या कोई इमेज लिंक करना है, मैंने यहीं से लिंक कर दिया, यहाँ से मैंने ड्राइव से लिया या URL से लिया या कंप्यूटर से लिया, मैंने यहाँ पे एक इमेज लिंक कर दिया, देखिए तुरंत आ गया, मुझे वो फोल्डर भी नहीं खोलना पड़ा। @ हमने कोई भी फाइल देखनी है, ये देखिए फाइल्स, जो जो हमने फाइल्स खोली है वो दिख रही है यहाँ पे, हम उसको लिंक कर सकते हैं, कैलेंडर के डेट्स लिंक कर सकते हैं, हेडिंग्स डाल सकते हैं, मीटिंग्स जो है हमारे, पेज कंपोनेंट्स जो है वो भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। दिख रहा है। यस मैम। सो वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। ये चिप ऐड हुआ है इसके साथ। यू कैन ऑल्सो ऐड इक्वेशंस, अगर मैथ्स टीचर्स हो तो वो इक्वेशंस भी डाल सकती है। यू कैन सी द इक्वेशंस हियर, यू कैन यूज इक्वेशन साइंस फ्रॉम हियर, और मैथ्स की भी शीट्स बना सकती हैं यहाँ पे। ये देखिए कैन यू सी, और बड़ा करूं मैं फॉन्ट, दिख रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये कैन यूज लाइक दैट ऑल्सो, इक्वेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक somebody is raising hand. Okay, so
वी डू दैट. ओके अलका मैम. तो ये आपका क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट. ये स्मृति मैम. मैम हम इसमें कोई वॉइस डाल सकते हैं क्या? इंसर्टिंग अ वॉइस. यस. अभी वीडियोस भी आ रहा है, एड ऑन्स हो रहे हैं, वीडियोस भी हम इंसर्ट इसमें कर पाएंगे. अच्छा. और Okay. ऑडियो अगर आपको ऐड करना है तो मैंने बताया था मोट एक्सटेंशन. लास्ट टाइम आप लोग को बताया था ना, मोट एक्सटेंशन मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में जब एक्सटेंशन. यस मैम. यस मैम. तो मोट एक्सटेंशन के थ्रू आप वॉइस भी डाल सकते हैं. ओके मैम. ओके. ठीक है. यस मैम. थैंक यू. Welcome. I think I have covered all the topics. Now I'm moving to Google Sheet. Now Google Sheets में we have to create Google Sheet. How to share Google Sheet with others. Spreadsheet की vocabulary, क्योंकि आपके questions इससे related आते हैं, तो you should know each and every part of that spreadsheet. Formatting cell, sorting numbers, text and dates, organizing data collected in Google Sheet, using formulas and functions like sum, average, COUNTIF, count, max, minimum, ये सारे काउंटा, वो सारे functions हम सीखेंगे. Analyzing the data using charts and graphs. अगर हमें डेटा को एनालाइज करना है, लाइक ग्रोथ क्या है या डाउन्स है, अप्स है, तो दैट वी विल सी थ्रू चार्ट्स. ट्रेंड लाइंस चेक करेंगे. मूविंग चार्ट टू अनदर शीट देखेंगे. एडिंग चार्ट फ्रॉम शीट टू साइट्स. साइट में गूगल साइट्स अगर बनाते हैं, अगर किसी बच्चे का मुझे परफॉर्मेंस एनालाइज करके उसको मुझे अपने साइट गूगल साइट में अटैच करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं. डॉक्स में भी ले सकते हैं और स्लाइड्स में भी ले सकते हैं. पब्लिशिंग द रिजल्ट फ्रॉम गूगल शीट. मैंने अपने क्लास का एक रिजल्ट बना लिया और उस शीट को मुझे पब्लिश करना है. मैंने वो पब्लिश करके वो लिंक जो है अपने क्लासरूम में लगा दिया या पेरेंट्स को भेज दिया. वो जो पब्लिश्ड वो रिजल्ट होगा दैट इज नॉट एडिटेबल. उसको कोई ना कॉपी कर सकता है ना एडिट कर सकता है. प्रोटेक्टिंग शीट्स एंड रेंजेस. अपने शीट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि nobody should touch that sheet. Use Google Sheet for class rosters or grade book or project plans. So let's see. Okay. जैसे ये शीट है, grade 1 attendance sheet. Okay. I am making a copy of it. Okay, now how to create Google Sheet सबको मालूम है. sheet.com, यहाँ पे sheets .google लिखेंगे या sheets.new लिखेंगे. न्यू लिखेंगे तो नई शीट ओपन हो जाएगी, और गूगल लिखेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा जहां से आप टेम्पलेट्स या ब्लैंक शीट्स ले सकते हो. ठीक है. अभी देखिए ये वाली, जब हमने docs.google लिखा तो ये वाला पेज खुला जहां से हम ब्लैंक शीट ले सकते हैं, या इन केस आई वांट अ टेम्पलेट आई कैन सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट. अगर इसकी जगह हमने यहाँ पे sheets.new कर दिया, मेरे पास स्ट्रेट अवे ब्लैंक शीट खुल के आ जाएगी. एक तो ये तरीका है. दूसरा, आपका ड्राइव से आप जाकर के खोल सकते हो, +, गूगल शीट. तीसरा, अगेन यू कैन गो टू वॉफेल एंड फ्रॉम हियर यू कैन ओपन द शीट. देयर आर 3 ways. ठीक है, क्लियर है. और चौथा, यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइव. राइट क्लिक कर दीजिए अपने ड्राइव पे कहीं पे भी, यहां से भी आप खोल सकते हो. Clear all 4 ways. Now coming to the Google Sheet. Now जब Google Sheet में हम जाते हैं
सो वी शुड नो द पार्ट्स ऑफ दिस. ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है, दिस स्क्वायर बॉक्स इज नोन एज सेल. This rectangular box, you can say, where the columns and rows मिलते हैं, जहां पे ही वो मिलते हैं, that is called a cell. ठीक. Now A, B, C, D जो vertical आपको दिख रहे हैं, these are called columns. अब जो horizontal आपको दिख रहे हैं, these are called rows. ठीक. Now each cell has its own unique address. हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है. जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो मुझे दिख रहा है G5. G कॉलम है, 5th रो है, तो ये इसका यूनिक एड्रेस है. दिस इज कॉल्ड एज नेम बॉक्स. ये नेम बॉक्स है जहां पे हर एक सेल का एड्रेस होता है. ठीक है. नाउ दिस इज नोन एज फॉर्मूला बार. यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लिखते हैं. ये वाला जो बार है, यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो इस जगह पे ये फॉर्मूला बार कहते हैं. ठीक है. नाउ कम्स हाउ टू चेंज फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमें सेल की फॉर्मेटिंग भी करनी है. क्रिएट हो गया. शेयरिंग, यू ऑल नो द सेम वे एज वी डू द डॉक, एज वी शेयर द स्लाइड. In the same way, same setting is here also. You first save and then you share this. ठीक है. शेयरिंग ऑप्शन सेम होता है. वर्जन हिस्ट्री सेम होती है, वो मैंने बता दिया आपको. ओके. नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड. शेयरिंग हो गया. स्प्रेडशीट की वोकैबुलरी मैंने बता दिया. जो मेन होता है वो यही होता है, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रोज, कॉलम्स एंड देन सेल. ये मालूम होना चाहिए. एंड देन वी कॉल इट एज अ रेंज ऑल्सो. ये रेंज होता है. अगर वी आर सेलेक्टिंग दीज मेनी सेल्स तो ये एक रेंज हो गया. नाउ यू कैन सी इन द नेम बॉक्स, यहाँ पे H6, ये पहला वाला जो सेल है, H6 कोलन. कोलन मीन्स कि हम एक रेंज को यहाँ पे रेंज के बारे में बातें कर रहे हैं. दैट इज कोलन. J13, ये जो हमारा लास्ट वाला कॉलम सेल है, दैट इज J13. तो ये पूरे रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहला सेल और आखिरी सेल को एज अ रेंज यहाँ पे देते हैं. तो ये मालूम होना चाहिए कि दिस इज द रेंज. नाउ कमिंग टू slide. Sorting numbers, text and dates. अब अगर मुझे शॉर्ट करना है, okay, now I am writing few names here. Nita, Vaibhav, Niti, ओके. सो दीज आर द नेम्स हियर. मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया. मैं गई यहाँ पे डेटा में और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया. शॉर्ट सीट अगर करते हैं तो ये पूरी सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना ही सिर्फ सेलेक्ट किया है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टिंग टू द रेंज. अब इसी में चेंजेस होगा, पूरी शीट में कोई चेंज नहीं होगा. तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया. शॉर्ट रेंज कैसे करना है, A to Z करना है कि Z to A करना है. तो मैंने कहा A to Z कर दो, तो ये A to Z हो गया. ठीक है. कंट्रोल Z किया. अब मुझे दोबारा शॉर्टिंग रेंज में जाना है, एडवांस रेंज शॉर्टिंग. अगर मैं इसके साथ ही यहाँ पे एक दो कॉलम में यहाँ पे डाल दिया मैंने, मान लीजिए एक में मार्क्स डाल दिया, कंट्रोल C. यहाँ पे मैंने दूसरे मार्क्स डाल दिए, कंट्रोल C.
अब मैंने यहाँ पे मार्क्स डाल दिया। अब मैंने ये सारे सेल को सेलेक्ट किया और मुझे शॉर्टिंग करनी है, एडवांस रेंज शॉर्टिंग ऑप्शंस। अब मुझे इसमें शॉर्टिंग करना है, या तो हम डेटा हेडर, अगर मेरे पास कोई हेडर होगा, यहाँ पे हेडिंग होगी तो हम इससे चले जाएंगे। जब हम हेडर करेंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला हेडिंग होगा, लेट मी शो, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश, यहाँ पे लिखा मैंने मैथ्स, ठीक है। अब ये हमारा हेडर है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे डेटा पे गए, शॉर्ट रेंज, एडवांस रेंज शॉर्टिंग। एक तो सिंपल शॉर्टिंग मैंने बता दी, अब एडवांस डेटा हेडर पे हमने किया, तो अब हमें किससे शॉर्ट करना है? इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है, नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है, या मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है। तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगी, सबके मार्क्स अकॉर्डिंगली नेम के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। मैंने कहा इंग्लिश के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, Z to A, मतलब इंग्लिश में जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क है वो टॉप पे आ जाए और उसके अकॉर्डिंग उल्टा आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर दो। कैन यू सी हियर? रानी का इंग्लिश में 100 था, वैभव का 89 था, इसके अकॉर्डिंग सारा डेटा चेंज हो गया, नेम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुआ, इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। सो आई केम टू नो दैट who were the topper of my class, who got best marks in English, so it is visible here. अब अगर मुझे यही शॉर्टिंग मैथ्स के मार्क्स के साथ करनी है, डेटा हेडर, मैथ्स के मार्क में कौन टॉप किया है वो मुझे देखना है, आई कैन शॉर्ट इट लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि रानी का 99 मैथ्स में था, स्मृति का 87 था, ये डॉट हो गया, आदिति का कम था, नीचे आ, तो इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो गई। अगर मुझे नेम के साथ शॉर्ट करना है तो मैंने डेटा हेडर रो किया, नेम किया, Z to A, मतलब जो अल्फाबेटिकली बाद का लेटर होगा उससे शॉर्टिंग हो जाएगी। ये देखिए वैभव पहले आ गई, स्मृति बाद में आ गई, मार्क्स भी अकॉर्डिंगली, ये नाम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग है, जो उसके मार्क्स है वो आ गई। क्लियर है शॉर्टिंग? Yes, ma'am. ओके। अब आता है फॉर्मेटिंग। अब हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? जनरली फॉर्मेटिंग सबको ही आता है। हमें अगर सेल बना रहे हैं तो सेल में हमें लाइंस चाहिए, बॉर्डर लाइंस चाहिए, हमने बॉर्डर लाइंस ले ली। ये बॉर्डर लाइन मुझे किसी कलर में चाहिए तो मैंने स्पेसिफिकली कलर ले लिया। अब मुझे ये बॉर्डर लाइन मोटा चाहिए, थिक चाहिए, तो मैंने थिक ले लिया। मुझे इसका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड चाहिए, फॉन्ट साइज मुझे बड़ा चाहिए, मैंने बड़ा कर लिया। मुझे सारे सेल थोड़े से और बड़े चाहिए, एक बार में सारे सेल बड़े कैसे हो जाए, मैंने कॉर्नर वाला सेल सेलेक्ट किया, ये जो कॉर्नर में था नेम बॉक्स के नीचे, और मैंने सेल को बड़ा कर दिया। एक साथ मेरे सेल की अच्छा, बड़े हो गए, ठीक है। yes, ma'am. So we can do like this. See, all the cell एक साथ हमारा बड़ा हो गया, एक साथ हमने छोटा कर दिया। क्लियर है? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. एक एक सेल को बड़ा करने की, छोटा करने की जरूरत नहीं है। देन बता दीजिए, आई लॉस्ट माय कनेक्शन। क्या चीज? मैम प्लीज शो वंस अगेन कैसे करते हैं इसको? बड़ा करेंगे। ओके, ये कॉर्नर वाला देख रहे हैं जहाँ पे नेम बॉक्स मैंने बताया था, जो हाँ 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 जी मैम जी। इंक्रीज द साइज। ये जो नेम बॉक्स बताया था इसके ठीक नीचे देखेंगे जहाँ पे कॉलम और रोज का जो वो है कॉर्नर, ये कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा टोटल वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है, जैसे सेलेक्ट ऑल करते हैं।
अब यहाँ से आपने स्क्वीज कर दिया सेल को, छोटा हो गया, सारे सेल एक बराबर स्क्वायर बॉक्स में हो गए। मैंने इसके रोज को और छोटा कर दिया, सारे सेल छोटे हो गए एक साथ। मैंने एक साथ बड़ा कर दिया, सब बड़े हो गए। मैंने एक साथ कर दिया, ये हो गए। ठीक है, इसमें तो हम कॉलम और Yes, ma'am. रो Thank you. दोनों एक साथ कैसे हुआ है? कॉर्नर वाला सिलेक्ट करना है। स्मिता ये कॉर्नर वाला तुम सेलेक्ट किया ना आपने, ये देखिए, ये जो नेम बॉक्स के नीचे कॉर्नर है, तो ये पूरा सेल सेलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद जो हेडर रो है उसको आप पास में कर दीजिए तो सब हो जाएगा। और अगर आपको रोज बड़ा करना है तो आप वैसे कर सकते हो, कॉलम बड़ा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर? किसी सेल को सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट करना है, उसमें डेट कलर फिल करना है, आपने कर लिया। दो सेल को मर्ज करना है, ये 3 सेल है, इसको मुझे एक सेल बनाना है, तो दिस इज अ मर्जिंग ऑप्शन, यहाँ से मर्ज कर लिया, फिर अनमर्ज कर लिया। हमारा टेक्स्ट वर्टिकली हमको मर्ज करना है, मान लीजिए ये तो हॉरिजॉन्टली मर्ज हुआ, अब मुझे वर्टिकली मर्ज करना है इन सारे सेल को। मैंने यहाँ से मर्ज वर्टिकली कर लिया, तो वर्टिकली भी हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, ये क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, हमारे रो के बाहर चला गया। ठीक है, इसको हमने रैपिंग कर दी, टेक्स्ट रैपिंग, तो ये एक ही सेल के अंदर आ गया। हमें सेल बड़ा करने की जरूरत नहीं है, उतने ही सेल में एक के नीचे एक वो टेक्स्ट रैप हो जाएगा। ओके। ठीक है, यस मैम। उसके बाद रैपिंग अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। देखिए, ये टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, ये अंदर फिट हो गया, ये आपका नीचे चला गया, हाइड हो गया। ठीक है, तो हम जनरली जब टेक्स्ट रैपिंग करते हैं तो हम बीच वाला यूज करते हैं, रैप। ठीक, अगर मुझे कोई हेडिंग देना है, मैंने स्मिता लिखा, मुझे थोड़ा आर्टिस्टिक वे में चाहिए, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, मैंने यहाँ से इस तरह से कर्व कर दिया। देख रहे हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट्स भी। तो दिस इज ऑल कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ये सारा फॉर्मेटिंग है। मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, बीच में चाहिए, मुझे एकदम बीचों बीच चाहिए तो ये दोनों के बीच में आ गया, मुझे लेफ्ट में और बीच में नहीं, नीचे चाहिए तो ये नीचे यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। यस So मैम। these all are called text formatting. ये फॉर्मेटिंग के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, नाउ कमिंग टू फॉर्मूलाज। अब हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, मुझे ऐड करना है बहुत सारा नंबर, तो हम कैसे करें? बहुत सिंपल, फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं इक्वल टू साइन, सम। अभी मैंने बताया था रेंज, पहले हमने ब्रैकेट लिया, अब हमें क्या क्या ऐड करना है। बहुत लंबी शीट है, हमें बहुत सारा ऐड करना है, हमने वो रेंज सेलेक्ट कर लिया। जब हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए B2 और E2 आ रहा है, पहला वाला सेल B2 है, लास्ट वाला सेल E2 है। B2 से E2 को ऐड कर दो, मैंने राउंड ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। नाउ सी द रिजल्ट, 215 इज द टोटल। एक बार हमने फॉर्मूला लगाया और इसको ड्रैग कर दिया, पूरा ऐड हो गया। मुझे प्लीज फिर से बता दीजिए। ओके, इक्वल Your voice is not coming. माय वॉइस,
Am I not audible? मैम यू आर ऑडिबल। मैम B2 के बाद क्या लगाया था आपने? मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ रेंज सेलेक्ट किया था। लेट मी शो यू। अच्छा, फर्स्ट मैं- एंड लास्ट। आपको सिर्फ रेंज सेलेक्ट करना है। इक्वल्स टू SUM सम, इक्वल्स टू साइन नहीं दिख रहा है तो मैं और बड़ा करूं व्यू। मैम दिख रहा है, दिख रहा है। Equals to SUM sum bracket and then the range. Close the bracket. मैम एक कंफ्यूजन है, जब ये आप सम कर रही हैं और रेंज जैसे B2 E2 किया है तो बीच में सेमीकोलन या वो जो साइन अपने आप आएगा कि मैम वो हम अपने वो करेंगे? क्योंकि आपने रेंज सेलेक्ट किया है ना, इसलिए वो रेंज ले लिया। पूरा आपने सेलेक्ट किया तो वो रेंज ले लिया। ठीक है, अगर आपको सेलेक्टेड कॉलम्स चाहिए अपने आप आएगा रानी मैम, अपने आप आएगा वो। अपने आप हाँ, आएगा। अच्छा नहीं ये आ रहा है अगर मैम, मुझे- मेरे को नहीं हो रहा है। अगर मुझे B2 लिया, क्योंकि मेरे में नहीं आया इसलिए पूछ रही हूँ मैं भी आस्था मैम। थैंक यू अब सो ये मच। लिया, अपने आप आएगा, अपने आप। ये देखिए मैंने सारे कॉलम्स नहीं लिए हैं। अब की बार मैंने क्या किया, B2 लिया, D2 लिया, E2 लिया, C2 छोड़ दिया, तो उसके साथ मुझे कॉमा लेना पड़ा। ये देखिए मैम ये फॉर्मूला के बगैर भी तो होता है सम। ये लास्ट वाले एरो पे क्लिक करके जो सम आता है उस पर क्लिक किया जाता है तो ये वाला ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये फंक्शन का ही है ना मैम। ये कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे आपने यहाँ पे कीबोर्ड टाइप किया, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास कर रहे हैं तो हमें याद है कि हमें ये फॉर्मूला करना है, नहीं याद रहा तो उसी तरीके से तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए ना। ऐड करने के लिए सम है, एवरेज के लिए एवरेज है, काउंट करना है तो काउंट फंक्शन है। पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे कि पहले इक्वल टू करेंगे? देखिए जब आप टाइप करते हैं तो पहले इक्वल टू साइन लिखेंगे, सम लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आप यहाँ से यूज कर रहे हैं तो आपने सम ले लिया और आप सेलेक्ट करोगे तो अंदर अपने आप फिल हो जाएगा क्या सम करना है। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। जब आप टाइप कर रहे हैं, जब आप टाइप कर रहे हैं तो आप इक्वल्स टू साइन लगा करके सम लिखते हैं और ब्रैकेट लिखते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं रेंज एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। इन केस यू आर यूजिंग द फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन फ्रॉम हियर, आपने सम सेलेक्ट किया, मुझे सम करना है, किसका सम करना है, यू जस्ट सेलेक्ट इट, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा रेंज। जैसे इसमें हमें सेलेक्टिव लेना है, सपोज करिए मुझे C लेना है, E लेना है, जो आपने पहले करके दिखाया है। When we अगर are using मुझे- function key, the right अगर हाँ नहीं, अगर मुझे सिर्फ जैसे मैंने सम किया, ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कॉमा, मुझे ये चाहिए कॉमा, मुझे ये चाहिए, ठीक है, और मान लीजिए मुझे ये चाहिए कॉमा, ये चाहिए, कोई भी सेल ले लिया मैंने, कॉमा लगा दिया। अब मैंने रेंज नहीं लिया, ठीक है, एंटर कर दिया तो ये आ गया, जितने सेल मैंने लिया था उसका एड्रेस आ गया और उसका कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, जब हम इर्रेगुलर रेंज लेते हैं, मतलब इर्रेगुलर सेल का एडिंग करते हैं, तो वी पुट कॉमा। मैंने थर्ड सेल लिया, फिफ्थ सेल लिया, एट्थ सेल लिया, नाइन्थ सेल लिया, वी पुट कॉमा। जब हम एक रेंज को, रेंज इज अ कॉन्टिगुअस सेल्स, मतलब एक के बगल में जो सेल होते हैं, तब वहां पे कोलन आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस मैम। ओके। तो सम इज क्लियर। क्लियर। अब मुझे एवरेज निकालना है। सिंपल AVERAGE जैसे ही लिखेंगे एवरेज आ जाएगा। यू सेलेक्ट द एवरेज, किसका लेना है, यू सेलेक्ट अगेन द रेंज, एंटर, यू विल गेट द एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स। यस। बस रुकिए 5 मिनट। मैम एक बार फिर से बताइए प्लीज।
equals to average bracket, then you want average of the marks. आपको इंग्लिश के टेक्स्ट का पूरे का एवरेज देखना है तो आपने वो सेलेक्ट कर लिया, वर्टिकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टली आपको एक बच्चे का एवरेज पता करना है तो हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर लिए। आपको टेस्ट 4 का पूरा एवरेज मुझे निकालना है तो वर्टिकली आपने सेलेक्ट कर लिया रेंज, ठीक है। तो वर्टिकली सेलेक्ट किया तो आपके पास आ गया ये ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये वर्टिकली टेस्ट 4 का एवरेज किया गया है मार्क्स 76.47। अगर हमें यहीं पे इस बच्चे का एवरेज पता करना है कि उस बच्चे का एवरेज मार्क्स कितना है तो मैंने अनु के आगे वर्टिकली उसके मार्क्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और मुझे पता चल गया कि अनु का एवरेज मार्क्स 63.75 है। क्लियर? और इसके संग भी ऐसे ही है, आपने ड्रैग करके नीचे तक ड्रैग कर लिया, आपको सारे बच्चों का एवरेज पता चल गया है। हाँ जी मैम, क्लियर। ठीक है, अब एवरेज के बाद मिनिमम। इस टेस्ट में मैथ्स आदित्य का किस टेस्ट में मिनिमम मार्क्स जो है वो क्या है? आदित्य का टेस्ट 1 2 3 4 में मिनिमम मार्क्स क्या है? 34 is the minimum marks that boy has scored. तो मुझे मिनिमम पता चल गया। सारे बच्चों के मिनिमम मार्क्स कितने हैं? मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। देखिए इसमें 64 was the minimum, नीचे वाले में 30 was the minimum, ये शो कर रहा है। मैम कैसे किया है इसको? सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू बस ब्रैकेट में बस मिनिमम लिखेंगे। रेंज। हाँ अच्छा, रेंज, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अभी कितना है? अब ऐसे ही मैक्सिमम के लिए भी इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट। अब मुझे पता करना है आदित्य का मैक्सिमम मार्क्स कितना था। मैंने चारों सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो आदित्य का मैक्सिमम मार्क्स 90 था, 90 आ गया यहाँ पे। सारे बच्चों का लेना है, स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, ड्रैग कर दिया, सबका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। ठीक है, यस मैम। छोटा 16 है ना? ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम हो गया। अब आता है काउंट और काउंटर। 16। जब हम इक्वल्स टू काउंट करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, हमें नंबर्स काउंट करने हैं, कितने इनपुट्स हैं हमारे। ठीक, हमने यहाँ पे डाला, एंटर किया, कितना आ रहा है? 8। अब यहाँ से हम काउंट करना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 आ रहा है, बट काउंट करने पे 8 आ रहा है, क्योंकि जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, जितने नंबर्स के इनपुट होते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ एंट्रीज, बेसिकली नंबर ऑफ एंट्रीज, कितने एंट्रीज है लिस्ट में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया कितने बच्चों की एंट्री है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू साइन लगाया, काउंट किया। अब मुझे पता करना है कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो मैंने यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया, क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। 17 बच्चों ने टेस्ट दिया है, मुझे पता चल गया 17 एंट्रीज हैं मार्क्स की। अब अगर हम काउंट ए लेते हैं, इज इक्वल टू काउंट ए एंड ब्रैकेट। अब इसमें क्या है, ये पूरे वैल्यूज लेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर्स है। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी सेल में दिख रही है वो काउंट करेगा। ये देखिए 9 आ गया, क्योंकि 8 नंबर्स था,
नेम वाला वो पहले काउंट नहीं कर रहा था, नेम वाला उसने अभी काउंट कर लिया। तो जब काउंट ए लिखते हैं तो वो टेक्स्ट और नंबर्स मतलब जितनी भी एंट्रीज है उसमें वो सबको काउंट कर लेगा। क्लियर है? सेम इसमें भी फॉर्मूला ड्रैग कर देंगे तो सारे लोगों का आ जाएगा। अब आता है काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में क्या करते हैं, काउंट करो इफ, एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है कि इस रेंज में अगर हमने एक रेंज ले लिया, ये मैंने रेंज ले लिया, कॉमा ग्रेटर देन 90, कितने बच्चों को ग्रेटर देन 90 मिला है? एक there is a space इसलिए दे रहा है, रुक जाइए। एक मिनट, काउंट मैं इसी रेंज में करा दे रही हूँ, मे बी ये नहीं ले रहा है अभी। I don't know, error दे रहा है अभी। The formula is same, you can see here. Count if, sorry, the range, comma, greater than I don't know why it is giving error. फॉर्मूला पार्स एरर, कहीं पे मेरे से कुछ मिस हो रहा है। लेट मी चेक, आई विल डू इट। अभी मैं दिखा दूंगी, ठीक है। सो काउंट इफ इस तरह से हो गया। स्मिता मैम, शायद वो डबल कोट्स में चाहिए क्या मैम? एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है। थैंक यू, डबल कोट्स में चाहिए था, मुझे कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये 17 आपके रेंज में आ गया कि जो ग्रेटर देन 50 था, जो हमारा क्राइटेरिया था ग्रेटर देन 50, हमारे रेंज में 17 आ गया। I2 से I25 तक इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट रेंज, मैंने ये पूरे टेस्ट का रेंज लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 90 ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट enter. So you can see, so 9 students have scored more than 90 marks. ये आ गया काउंट करके। जो भी हम कंडीशन देंगे, लेस देन का कंडीशन देंगे तो वो लेस देन भी ले लेगा, इक्वल्स टू का कंडीशन देंगे तो वो इक्वल्स टू भी ले लेगा, इक्वल्स टू 100। अगर मुझे देखना है कि कितने लोगों को 100 मिला है,
There are only 4 students, those who have got 100. You can see here 1, 2, 3 और ये चौथा 1, 2, 3 और ये 4 लोगों को 100 मिला है. तो ये काउंट करके यहाँ पे बता दिया कि 100 मार्क्स है, 4 लोगों को मिला है. एंड यू कैन ड्रैग एंड चेक, क्योंकि ये तो पूरा मैंने रेंज ले लिया था. अगर आपने एक वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिया होता तो वो आपका सबका दिखा देता. अभी तो वो 4 सब में दिखाएगा. अगर मैं ड्रैग भी कर लूंगी तो सब में 4 ही दिखा देगा कि 4. ठीक है, सेल के नंबर्स चेंज हो रहे हैं. देन कम्स योर ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन एंड स्पार्क लाइन आर सेम. ये भी एक जो है आपका ग्रोथ शो करने का स्पार्क लाइन. इससे आप बच्चों का ग्रोथ, इसको कहते हैं मिनिएचर चार्ट. इससे बच्चों की ग्रोथ आप चेक कर सकते हो. स्पार्क लाइन, एंटर. Sorry, I have missed K. Can you see here? अब ये ग्रोथ पता चल रहा है कि ये पहले आपका फर्स्ट में 45 और 46 सिमिलर नंबर्स हैं. Then there was a growth of 19 and then the child deteriorate and came on 34 marks. So you can see यहाँ से यहाँ तक सेम नंबर दिख रहा है. Then the child goes up with 90 marks and then he deteriorates. अब इसको स्पार्क लाइन को भी अगर आप नीचे ड्रैग करके चले जाएंगे सारे बच्चों का देखने के लिए, तो यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ ईच स्टूडेंट विद अ मिनिएचर चार्ट. दैट इज अ ट्रेंड लाइन, स्पार्क लाइन जिसे कहेंगे. क्लियर? Simple equals to spark line, bracket and the range which you are selecting. Range select करके bracket close. Any doubt till here? मैम स्पार्क लाइन एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए, मैं लिख लूँ उसको मैम प्लीज. Okay, okay. दिख रहा है? हाँ जी मैम. मैम थैंक In यू. the range. ठीक है मैम, जैसे हम लोग ग्रेड देते हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 91 आउट ऑफ 100, अगर 91 से ज्यादा है तो ए मिलेगा. इसके लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ मैम, उसके लिए कंडीशंस लगाने पड़ते हैं. अच्छा, वो एक बार बता दीजिए, बिकॉज ग्रेड देने के लिए. उसके लिए आपको सेलेक्ट करके पहले आपको सेट करना पड़ेगा सारा कंडीशंस. इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, उसको करना पड़ेगा एंड देन मैं आपको अब बाद में बता दूंगी. ठीक है? ओके मैम, ओके. ओके, ट्रेंड लाइन हो गया. देन वी आर कमिंग टू चार्ट्स. अब चार्ट्स में स्पार्क लाइन और ट्रेंड लाइन मैंने बता दिया. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. यू कैन सी हियर लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, देन ज्योग्राफिकल मैप. तो हर तरह के चार्ट के लिए अलग अलग डेटाज होते हैं. पाई चार्ट जो है वो किसी एक डेटा के साथ वर्क करता है. लाइक हमें आदित्य का इंग्लिश का मार्क्स देखना है या अपने क्लास में सारे बच्चों का इंग्लिश का सिर्फ मार्क्स देखना है. लेट मी कम टू द चार्ट. मुझे सारे बच्चों का सिर्फ टेस्ट 1 के मार्क्स देखने हैं. मैंने ये मार्क्स सेलेक्ट कर लिया. कैन यू सी हियर? मैंने ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब मुझे पाई चार्ट बनाना है. आई एम गोइंग टू चार्ट. अब यहाँ से मैंने कॉलम चार्ट में सजेस्ट लेकर सेलेक्ट किया. मैंने लिया पाई चार्ट. नाउ यू कैन सी विहान का नंबर्स यहाँ पे है. अभी नंबर्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ परसेंटेज में आ रहे हैं मार्क्स. आई वॉन्ट द लेबल्स ऑल्सो, तो हम उसको कस्टमाइज करेंगे. चार्ट की स्टाइल चेक करेंगे. हमें बैकग्राउंड में कलर्स चाहिए, तो मैंने बैकग्राउंड में कलर ले लिया.
मुझे 3D इफेक्ट चाहिए, मैंने 3D इफेक्ट ले लिया। पाई चार्ट पे आए, मैंने यहाँ पे लेबल्स लिखा। मुझे वैल्यू के लेबल्स चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज चाहिए। तो कैन यू सी द मार्क्स हियर? रिवेश को इंग्लिश में जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें 67 मार्क्स मिले हैं, विहान को 46, 78। तो पाई चार्ट का जो पाइज हैं, स्लाइसेस अगर बड़े हैं तो दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड मोर, स्लाइसेस अगर पतले हो गए हैं तो है ही हैज स्कोर्ड लेस मार्क्स। तो इससे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं एक साथ, ओनली जस्ट सीइंग द ग्राफ की हाउ द चार्ट को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे का मार्क्स ज्यादा है या कम है। ये हो गया एक डेटा पे काम करने की बात, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू, आई एम डिलीटिंग दिस चार्ट। नाउ आई वांट टू कंपेयर टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, मैं चार्ट पे गई, कंपेयर करने के लिए मुझे बार चार्ट या लाइन चार्ट चाहिए, ठीक है। या लाइन चार्ट लेते हैं या बार चार्ट लेते हैं या कॉलम चार्ट। ये सजेस्टेड चार्ट्स दिखाता है कि मैंने दो को लिया है तो आई वांट टू कंपेयर। अब मुझे जो भी चार्ट लेना है आई विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर। देन इफ आई वांट टू कस्टमाइज इट, आई विल गो टू चार्ट स्टाइल, I will change the background, I will change the border color, ठीक है। I want a 3D effect, I will take a 3D effect। चार्ट एक्सेस और टाइटल पे जाते हैं तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ये दिया हुआ है लीजेंड्स, दीज आर कॉल्ड लीजेंड्स। जैसे मैप में हम कीवर्ड्स लगाते हैं तो ब्लू कलर की लाइन टेस्ट 1 के मार्क्स शो कर रहा है और रेड कलर की लाइन टेस्ट 2 शो कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे और सीरीज पे। मुझे डेटा लेबल्स चाहिए, मार्क्स भी चाहिए इसके साथ साथ, तो मैंने डेटा लेबल्स लगा दी। अब मुझे ये पता चल रहा है, अब मैं कंपेयर करूंगी अगर चार्ट को तो मुझे इजीली दिख रहा है कि नीचे नाम है आदित्य का, मैथ्स फर्स्ट टेस्ट में 78 था और सेकेंड टेस्ट में 46। So I can easily compare the or analyze the result 78 और 46, यानी सेकेंड टेस्ट में वो डिटेरियोरेट हुआ है। जो बढ़ा है वो क्या है, आर्य का 74 से 89 हो गया है, अनु का 64 से 83 हो गया। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसे ही सारे टेस्ट का मार्क्स देखना है तो मैंने सारे चारों टेस्ट ले लिए और मैं इसको कंपेयर करूंगी। मैंने फिर से चार्ट लिया, अब आई वांट अ चार्ट, कॉलम चार्ट ले लिया, मैंने कॉलम ही चार्ट ले लिया संग में। फिर मैं गई कस्टमाइज में, मैंने इसको स्टाइल को 3D कर दिया। चार्ट एक्सेस टाइटल के लिए मैंने यहाँ से डेटा लेबल लगा दिया, मार्क्स आ गए। अब मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, मैंने इस चार्ट को बड़ा कर दिया। अभी भी बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, सो आई विल मूव दिस चार्ट। मैं इस चार्ट को मूव कर दूंगी उसके अपने नए पेज में। यू कैन सी दिस, मूव टू इट्स ओन शीट। मैंने इस चार्ट को अपने अलग शीट में मूव करा दिया। Now you can see this chart has come to its own sheet। अब यहाँ से easily you can see हर एक बच्चे की ग्रोथ और डाउनफॉल आप क्लियरली चेक और एनालाइज कर सकते हो। ये 30 से 40 हुआ नेक्स्ट टेस्ट में, फिर 67 हुआ, फिर 78 हुआ। तो जिस बच्चे का डाउन हुआ सेकेंड टेस्ट में, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो easily you can see the up and downs of the marks in the chart by moving it to a new sheet. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Good one. Okay. Now I am again coming to formula sheet. अब ये मार्क्स है, ठीक है। अब ये मार्क्स को मुझे पब्लिश करना है पेरेंट्स को। मुझे ये मार्क्स जो है
पब्लिश करना है पेरेंट्स को। कि मेरे बच्चों के मार्क्स सारे टेस्ट के पेरेंट्स को पता चल जाए। यू विल गो टू फाइल, ओके, एंड यू विल पब्लिश इट। शेयर किया, पब्लिश टू वेब। अब जब आप पब्लिश टू वेब करते हैं और यहाँ पे ये पूछता है इंटायर डॉक्यूमेंट, जैसे मेरे हर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग टैब्स हैं, अलग अलग शीट्स बने हैं। आई डोंट वांट टू शेयर ऑल द टैब्स, मुझे टेस्ट 1 ही शेयर करना है। मेरा एक टैब जो है वो टेस्ट 1 के मार्क्स का है, तो मैंने यहाँ से बोला इंटायर शीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग वाली शीट या टेस्ट 1 वाली शीट चाहिए। मैंने इसको फॉर्मेटिंग शीट को किया, पब्लिश कर दिया, ओके किया, आई गॉट द लिंक, दिस इज द लिंक हियर। अब मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया, ये लिंक कॉपी हो गया। मैं क्लासरूम में वापस आई अपने, दिस इज माय क्लासरूम, ठीक है। मैं क्लासरूम में एज अ स्ट्रीम भी मैं ये लिंक डाल सकती हूँ अनाउंसमेंट के साथ। मैंने ये लिंक यहाँ पे डाल दिया। नाउ यू ऑल प्लीज चेक, आपके पास फॉर्मेटिंग वाली शीट क्या एडिटेबल है, आपके स्ट्रीम पे गई है? जस्ट चेक इन योर क्लासरूम। किसी ने देखा? मैम अभी नहीं आई है। रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। मैम नहीं आई है। ओ सॉरी, मैंने पोस्ट नहीं किया था, सॉरी सॉरी सॉरी। आई लिंक? नो मैम। आएगी अभी। चेक योर रिजल्ट, मैंने लिखा नहीं था इंस्ट्रक्शन। नाउ प्लीज चेक। नो मैम, नहीं आई है। आ गई होगी। नहीं आई मैम। नहीं आई नो मैम। ये देखिए मेरे स्ट्रीम पे दिख रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं पोस्ट क्रिएटेड। रिफ्रेश करके देखिए। मैम करा, वो कैनवा वाला ही आ रहा है मैम, वो अभी नहीं आया है। इट इज देयर। यस मैम, कैनवा वाला ही दिखा। अनाउंसमेंट में चेक कर रही हैं? हाँ जी मैम, अनाउंसमेंट में ही चेक कर रहे हैं पर नहीं आया है। मैंने तो पोस्ट कर दिया है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ये देखिए मेरे चेक योर रिजल्ट करके आ रहा है। प्रेजेंट कीजिए। प्रेजेंट करूं? हाँ हाँ करिए। ओ सॉरी, नहीं आया होगा, रुक जाइए रुक जाइए। मैंने डेमो वाले पे पोस्ट किया था। 1 मिनट, गिव मी टाइम। अब चेक कीजिए। लास्ट कैनवा का कोई असाइनमेंट ना ना ना, मैंने उस पे पोस्ट कर दिया था। जो 2 डेमो वाली क्लास बनाई थी ना, उस पे मैंने पोस्ट कर दिया था। नाउ यू चेक। इतने सारे क्लासरूम बन जाते हैं ना कि गड़बड़ी। नहीं मैम, अभी भी नहीं आया है। अब आ गया, चेक कीजिए। आ गया मैम। यस मैम, गॉट इट। हाँ, अब यस इसको नाउ। ओपन मैम कीजिए। गॉट इट। अब इसको ओपन कीजिए। एक्चुअली मैंने जो डेमो वाली क्लास बनाई थी उसमें पोस्ट कर दिया था। आ गया मैम। सोनल मैम प्रेजेंट करके दिखाइए। हाँ जी मैम। यस मैम, वो शीट दिख रही है जो आपने सिर्फ वो सिंगल शीट शेयर की है ना? हाँ, क्या Yes, उसको ma'am. एडिट कर सकते हैं? नहीं है उसमें मैम। कोई फाइल या कुछ नहीं, नहीं। मेन्यूज दिख रहे हैं? नो मैम, नो मैम। नो मैम।
कोई मेन्यू नहीं दिख रहा होगा आपको, नो मैम, सिर्फ No, ma'am. रिजल्ट दिख रहा नो है, मैम, ओनली रिजल्ट। only the result. Nobody can edit, only you can see the marks. Yes. यस मैम। ठीक है? So this is how you can publish your results. Any doubt anywhere? नो मैम, No, ma'am. पक्का? यस मैम। Now protecting sheet. अब जनरली क्या होता है जब हम शेयर शीट में काम करते हैं तो मैम योर किसी स्क्रीन को इज नॉट विजिबल मैम। ओ आई एम नॉट, जब हम कभी भी शीट पे काम कर रहे होते हैं तो सब यही कहते हैं मैम हमने तो पोस्ट किया था, किसी ने डिलीट कर दिया, किसी ने डेटा को चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे पीबीएल के मार्क्स हैं, एसएलसी के मार्क्स हैं, हम लोग अलग अलग कॉलम में सब्जेक्ट वाइज डाल देते हैं अपना अपना। तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर शीट। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मैंने जैसे यहाँ पे ये नाम है, नाम और टेस्ट 1 मैंने अपने मार्क्स डाल दिए। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं गई डेटा पे, यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्ट शीट एंड रेंज। आप अपनी पूरी शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने जो सेलेक्ट किया है रेंज, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो सेलेक्ट किया था रेंज A1 से B18 तक था, दिख रहा है? ये यहाँ पे दे दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ये इंग्लिश की शीट है, इसको कोई टच नहीं करेगा। सेट परमिशन, यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू एडिट अ पार्ट ऑफ दिस शीट, यू शुडंट बी चेंज एक्सीडेंटली, एडिट एनीवेज, डोंट शो इट अगेन। ओके, ठीक। अब मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, मैं इसमें एडिट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ कि कोई ना शो वार्निंग व्हेन एडिटेड, जब भी कोई एडिट करे तो मुझे वार्निंग बता दे। रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट, मैंने यहाँ से स्मिता जैन को सिर्फ रखा, और इस शीट, ये जो शीट शेयर्ड थी मेरी, उसमें से मैंने सिर्फ डीपीएस वाली आईडी पे रखा, और मेरी जो पर्सनल वाली आईडी थी वहां से मैंने हटा दिया कि मैं पर्सनल आईडी से इसको एडिट ना कर पाऊं। अब मैं ये शीट अगर किसी से शेयर करती हूँ तो वहां से उसकी एडिटिंग राइट हटा देंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद पहले इतना करते हैं। ठीक है, डन। अब ये शीट अगर मैं शेयर करती हूँ, मैंने ये शीट एनीवन विद द लिंक किया एज अ एडिटर, कॉपी लिंक, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब आप इस शीट पे जाइए और मेरी ये जो प्रोटेक्टेड रेंज है उसको टच कीजिए। टेस्ट नंबर 1 पे आदित्य के मार्क्स को चेंज कीजिए। क्या कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू चेंज द? यस मैम, कर पा रहे हैं चेंज? यस और नो? नो, यस मैम, यस मैम। नहीं कर पा रहे ना? मैम मैंने किया। मैंने भी किया मैम। आई थिंक इट इज अ डिफरेंट, मैंने भी किया मैम। क्योंकि इस लिस्ट में कोई आदित्य नहीं है। आप अभी वाली जो शीट मैंने शेयर किया है उस शीट पे आप काम कर रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो कहाँ शीट पे किया आपने चेंजेस? 45 तो मुझे अभी भी दिख रहा है, ये 45 है। नो मैम, We got this link, this sheet link we अरे have. you all are there on this link. मैम, आप सब लोग हैं इस लिंक पे। But we and you cannot. have shared another one, the yellow one. अच्छा, वेट अ मिनट, नहीं कर पा रहे हैं मैम, नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए नहीं हो रहा है, चेंजेस आर नॉट हैपनिंग। मैम चेंजेस नहीं हो रहा है। द सेकंड कैसे वन नहीं? मैम, फॉर्मूला में वो लगा हुआ है सेकंड शीट पे। हाँ, सब सेकंड लोग फर्स्ट फॉर्मूला पे वाले कर रहा है में मैम,
फॉर्मेटिंग में फर्स्ट सब लोग वाली हो चेंज पा कर रही है रहा था। मैम, सेकंड सेकंड वाली वाले नहीं हो में, पा ये रही है। फॉर्मूला वाले में। यस मैम, यस सेकंड मैम, वाले पे नहीं चेंजेस हो नहीं रहा हो रहा मैम, मैम। वो एक मैसेज आ रहा है रिस्ट्रिक्शन का। देखिए यहाँ पे सोनल मैम सब लोग हैं और मुझे मालूम है ये कौन चेंजेस कर रहा है, दिख रहा है? हाँ यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। मैम फर्स्ट वाली शीट पे हो रहा था, सेकंड वाले पे नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। मैम नंबर चला गया। ये देखिए मैंने डेटा, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, शीट 2 सेट परमिशन, कोई चेंज ना कर पाए। अब कीजिए चेंजेस। मैम वी आर नॉट एबल टू डू। नहीं हो रहा है ना? No. आप दूसरे नंबर्स को सेव कर सकते हैं, बस उस रेंज को नहीं सेव कर सकते चेंजेस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर शीट और द रेंज। यूज गूगल शीट, क्लास रोस्टर, ग्रेड बुक, प्रोजेक्ट प्लान। आप अपनी शीट को प्रोजेक्ट प्लान की तरह से यूज करते ही हैं। शीट में हम अपना नाम लिखते हैं, इस पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेक बॉक्स डाल दिया, किसने काम किया है। लाइक ये शीट है, मैंने इसको कॉपी किया, एक नई शीट पे डाला। अब मैंने इसमें लिखा, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 किस बच्चे ने किया है, किसने नहीं किया है, यू जस्ट पुट अ चेक बॉक्स हियर। इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट चेक बॉक्स। अब आपका ये ट्रैक लिस्ट मेंटेन हो गया। आदित्य ने काम कर लिया, टिक। दिव्या ने काम कर लिया, टिक। रमेश ने काम कर लिया, नाइस, सो नाइस, थैंक यू। so you can maintain a checklist here also. या ठीक है, यस मैम। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए था। दिस वाज ऑल ए फॉर लेवल 1। use your Google Sheet for class roster, grade book and project plans. I hope I have covered all the things. कहीं कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Okay, then see you on day 3. And when will that be? आप बताओगे कब करना है?